محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی. پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی میں یہ 3 چیزیں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حقیقی لذت اور لطف اندوز ہوگا. اول یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو. دوسرا یہ کہ کسی بندہ سے اس کی محبت محض اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو. تیسرے یہ کہ جب اسے اللہ نے کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و اسلام کی روشنی سے نواز دیا ہے تو اب وہ اسلام سے پھر جانے کو اتنا ہی برا جانے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو. تشریح: کمال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس درجہ رچ بس جائے کہ ان کے ماں سوائے تمام دنیا اس کے سامنے کمتر ہو. اس طرح یہ شان بھی مومن کامل کی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محض اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اگر کسی سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں غرض کے اس کا جو بھی عمل ہو صرف اللہ کے لیے ہو اور اس کے حکم کی تعمیل میں ہو. ایسے ہی ایمان کی پختگی کے ساتھ دل میں بیٹھ جانا اور اسلام پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا، اور کفر و شرک سے اس درجہ بیزاری اور نفرت رکھنا کہ اس کے تصور و خیال کی گندگی سے بھی دل پاک و صاف رہے، ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے. اسی لیے اس حدیث میں فرمایا گیا کہ ایمان کی حقیقی دولت کا مالک اور اس پر جزا و انعام کا مستحق تو وہی آدمی ہے جو ان تینوں اوصاف سے پوری طرح متصف ہو، اور ایمان کی حقیقی لذت کا ذائقہ وہی چکھ سکتا ہے جس کا دل ان چیزوں کی روشنی سے منور. آغاز سے قبل ایک نظر آج کی اہم سرخیاں. شہر کی ترقی کے ساتھ ساتھ دور حاضر میں ریسٹورنٹ اور مالز کے آغاز سے عوام کو مل رہی سہولتیں. اربن ایم ایل اے بیگالا و آر ٹی سی چیئرمین باجی ریڈی. ہر شہری کو ووٹ کا حق حاصل. کسی بھی اہل شہری کا نام ووٹر لسٹ سے حذف نہ ہو. عہدیداران توجہ دیں. ضلع کلکٹر سی نارائن ریڈی. پولیس ریکروٹمنٹ کے اہل نوجوانوں کے لیے فزیکل فٹنس ٹیسٹ انتظامات کا پولیس کمشنر کے آر ناگراجو نے لیا جائزہ. جاری کیے ہدایتیں. غریب ماں باپ سے سونا و رقم چھیننے کے بعد بیٹی اور داماد نے بوڑھے ماں باپ کو کیا گھر سے بے دخل. انصاف کے لیے بوڑھے ماں باپ کا داماد کے گھر کے روبرو احتجاج. اب خبریں تفصیل سے. گزشتہ 8 سالوں میں شہر میں ترقیاتی کاموں کو عمل میں لایا گیا. شہر میں پرسکون امن شانتی کا ماحول بنایا گیا. اربن ایم ایل اے بیگالا گنیش گپتا کا بیان. نظام آباد ٹاؤن کے بائی پاس روڈ پر مقامی ایم ایل اے بیگالا گنیش گپتا، رورل ایم ایل اے، ریاستی آر ٹی سی چیئرمین باجی ریڈی گوردھن کے ہمراہ پرائیویٹ ریسٹورینٹ کا افتتاح کیا. اس موقع پر ایم ایل اے نے ہوٹل کا جائزہ لیتے ہوئے ہوٹل کی خوبصورتی، ہوٹل میں دی گئی سہولیات کی کارکردگی کی سراہنا کی. اس موقع پر اربن ایم ایل اے بیگالا گنیش گپتا نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ضلع میں پرسکون ماحول، امن شانتی ہونے سے ضلع ترقی کی راہ پر ہے. بہت سی پرائیویٹ کمپنیاں ضلع کی ترقی کو دیکھتے ہوئے کئی تجارتی انٹرنیشنل ہوٹلز، جویلری دکانیں، آئی ٹی ٹریننگ کمپنیاں، شاپنگ مالز کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے.
जिससे नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम हो रहे। इस प्रोग्राम में इनके हमरा मेयर डी नीतू किरण, लुड़ा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मैनेजमेंट तृप्ति रेड्डी, टीआरएस कॉर्पोरेटर्स कायदीन भी मौजूद थे। మరి ఎంత మంచి హోటల్, జస్ట్ లైక్ 5 స్టార్ హోటల్ సౌకర్యాలతో ఉన్నటువంటి ఈ హోటల్ను మా తిరుపతి రెడ్డి గారు వారి యొక్క మిత్ర బృందం కలిసి ఒక ప్రెస్టీజియస్ హోటల్గా దీన్ని తయారు చేయడం నిజామాబాద్ టౌన్కి, సిటీకి గర్వకారణం. నిజామాబాద్ టౌన్లో హోటల్ చాలా ఉన్నా మంచి క్లాస్లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి హోటల్ ఏర్పడ్డాయి. ఈ ప్రాంతానికి చాలామంది భాషలు వెళ్ళాలన్నా, ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్ళాలన్నా కానీ, మహారాష్ట్ర వెళ్ళాలన్నా కానీ సెంటర్ పాయింట్ కాబట్టి నిజామాబాద్ టౌన్ ఇది బైపాస్ రోడ్లో ఉండడం చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది ప్రజలకు, ప్రయాణికులకు. వాటి ఈ యొక్క హోటల్ యాజమాన్య కోటే మనం చేస్తున్నాడని ప్రభుత్వం తరఫున జరిగేటటువంటి పనులతో పాటు ప్రైవేట్ వ్యక్తులు కూడా చాలామంది నిజామాబాద్లో పెట్టుబడులు పెట్టి హైదరాబాద్ నుంచి చెందినటువంటి వ్యాపార సంస్థలు వచ్చి కూడా ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద షాపింగ్ మాల్స్ని పెడతా ఉన్నారు. అదేవిధంగా జ్యువెలరీ షాప్స్ని కూడా ఇక్కడ పెడతా ఉన్నారు. పెళ్ళిళ్ళ కోసం హైదరాబాద్ పోయేటటువంటి పని లేకుండా నిజామాబాద్లోనే అన్నీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా మన నిజామాబాద్ తయారైంది. దాంట్లో భాగంగా హరి అనేటటువంటి హోటల్, స్టార్ హోటల్ ఫెసిలిటీస్తో తిరుపతి రెడ్డి గారు వారి మిత్ర బృందం అందరూ కూడా ఇక్కడ హోటల్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. వారికి నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇంతకుముందు హోటల్స్ అంటే కేవలం హైదరాబాద్ రోడ్లో కపిల హోటల్ కానీ లేకపోతే कोई भी वोट हक से महरूम ना रहे, इस पर खास तवज्जो दे। इलाकों से मुंतकिल होने वाले वोटर्स की निशानदेही करें और जब तक दूसरे इलाके के वोटर लिस्ट में नाम दर्ज ना हो, वोटर लिस्ट से नाम ना निकालें। घर घर पहुंचकर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करें। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के अहकामात। जिला कलेक्टर ने मालापल्ली में वाक़ स्टैंडर्ड स्कूल में पोलिंग बूथ पहुंचकर बीएलओस की मदद से अंजाम दिए जाने वाले कामों का जायजा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के हमरा टाउन सदर इमाम शकील अहमद फाजिल, टाउन मोहतमद इमाम शहबाज अहमद, सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर भी मौजूद थे। कलेक्टर सी नारायण रेड्डी को चाहिए कि वो राय दहिंदों की तफसीलात मालूम करें जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से दूसरे इलाकों में चले गए और उन्हें खुसूसी रजिस्टर में दर्ज करें। नारायण रेड्डी ने बूथ सतह के ओहदेदारों को मशवरा दिया। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने नए वोटरों के इंदराज, तब्दीलियों के इजाफे और आधार सीडिंग के अमल का मुआयना किया और रजिस्टरों का भी मुआयना किया। बीएलओ से खुसूसी वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के बारे में मकामी लोगों के रद्दअमल के बारे में पूछा किया। उन्होंने वोटर लिस्ट में इंदराज के हवाले से बीएलओस की रहनुमाई करते हुए उनके शुकूक व शुबहात को दूर किया। वोटर लिस्ट को नामों की नकल के बगैर एहतियात से चेक किया जाए। अगर कोई दूसरे इलाके में चला गया तो क्या उसका नाम नए पोलिंग बूथ में दर्ज किया गया, आया तस्दीक के बाद ही उन्हें फहरिस्त से निकाल दिया जाए। ये तजवीज़ है कि पहले फील्ड लेवल पर घर घर जाकर तफसीलात पूछी जाए, लेकिन अगर तफसीलात सामने नहीं आती है तो गरुड़ ऐप की मदद से फोन पर राब्ता किया जा सकता है। तस्दीक के बाद मरने वालों के नाम फहरिस्त से निकालने की तजवीज़ की। 18 साल या उससे ज़ायद उम्र के हर फर्द को वोटर लिस्ट में शामिल करने की मुखलिसाना कोशिश करने और किसी अहल वोटर का नाम लिस्ट से खारिज न करने की हिदायत की जाती है। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले तमाम वोटर्स के वोट एक ही पोलिंग सेंटर में डाले जाए। अगर वो मुख्तलिफ जगहों पर है तो उन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो मुकर्ररा फॉर्म को पूर्ण करें और एक ही पोलिंग स्टेशन के अंदर मुंतकिल कर दे। इस मौके पर कलेक्टर के साथ मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर टाउन सदर इमाम शकील अहमद फाजिल ने अवाम से पुरखुलूस अपील की कि वो इस मौके से इस्तिफादा हासिल करें और अवाम की खिदमत के लिए इमाम कॉर्पोरेटर्स हर डिवीजन में तैयार है, वोट को जाया ना करें। आज निज़ामाबाद अर्बन में स्पेशल ड्राइव की शक्ल में वोटर लिस्ट का कामों का जायज़ा लेने के लिए स्पेशल ड्राइव में आज कलेक्टर साहब स्टैंड रिच स्कूल के पीएस में तशरीफ़ लाए थे। आवाम से मेरी गुजारिश है जो भी बीएलओ है अपने अपने एरियो जो घर पे आके आपका आधार कार्ड ले रहे हैं वोटर आईडी को लिंक करने के लिए, वरना बाद में अपना वोट ज़ाया ना हो जाए, इसलिए वोटर आईडी को आधार से लिंक करना ज़रूरी है। आप अपने बीएलओस को अपने आधार कार्ड की कापी दीजिए, नहीं तो अपने एरिया के कारपोरेटर्स को भी आप रब्त कर सकते हैं। ज़रूरी हमें ये है
कि आधार लिंक ज़रूरी है। फिर उसके अलावा भी जो नए बच्चे जो नए इनरोलमेंट करने के लिए फॉर्म 6 रखा गया है, उसका भी सुनहरी मौका उठाते हुए वो भी अपने बच्चों को अपने आधार वोटर आईडी कार्ड बनवाएं और साथ ही साथ निज़ामाबाद अर्बन हुसन माइनॉरिटी एरियो के जो परसेंटेज ऑफ आधार लिंक का है थोड़ा सा कम है। हम आवाम नाज से पुरखुलूस बार बार यही गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक कीजिए और अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी होना हो। अगर आधार से लिंक करी हुई लिस्ट अगर वापस पब्लिशड हो जाती है तो फिर बाद में हमको पछतावा ना हो, इसलिए आप अपना वोटर आईडी कार्ड आधार से लिंक कीजिए। जिला पुलिस रिक्रूटमेंट के दूसरे मरहले को सख्ती से अमल में लाते हुए जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। मुलाजमत के ख्वाहार किसी भी दरमियानी आदमी से खतरे मुलाजमत के झांसे में ना आए। सीपी केआर नागराजू का बयान। जिले में पुलिस रिक्रूटमेंट में फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम को इस महीने की 8 तारीख से 12 दिन तक मुनाकिद किया जाएगा। इस फिजिकल फिटनेस को जिले के नागाराम के राजाराम स्टेडियम में मुनाकिद किया जा रहा है। फिटनेस इम्तिहान लिए जाने के मुताल्लिक इंतजामात का जिला पुलिस कमिश्नर केआर नागराजू ने जायजा लिया। पुलिस रिक्रूटमेंट में 11,393 अफराद तहरीरी इम्तिहान में कामयाबी के बाद जिस्मानी फिटनेस को कामयाबी के लिए हाजिर होना है। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर केआर नागराजू ने बात करते हुए बताया कि कोई भी शिकायत के बगैर बेहतर इंतजामात के साथ फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा। मर्दों को 1600 मीटर की दौड़ और खवातीन को 800 मीटर दौड़ के लिए RFID पैड्स का इस्तेमाल और सीसी कैमरों को नस्ब करते हुए हर फर्द को रिस्ट बैंड हाथ पर बांधते हुए कानून के दायरे में फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा। कोई भी कानूनी दायरे से हटकर आगे जाने वालों को टेस्ट के मैदान से बाहर कर दिया जाएगा। शॉर्ट रोड, लॉन्ग जंप के लिए डिजिटल थ्यूट स्लाइड्स का इस्तेमाल अमल में लाया जा रहा। इन फिजिकल फिटनेस के मुतालिक ऑनलाइन में पुलिस शोबे के दाखिला बोर्ड सर्वर में अपलोड किया जाता है। इस महीने की 8 से 20 तारीख तक रिक्रूटमेंट इम्तिहानात को मुकम्मल कर लिया जाएगा और खवातीन को खुसूसी बैच के जरिए फिटनेस अमल में लाया जाएगा। जमात इस्लामी हिंद गुज़िश्ता 75 बरस से मुल्क में अवामी खिदमत अंजाम दे रही। इस्लाह मुआशरा, नौजवानों की तरबियत व दीगर सरगर्मियाँ नाकाबिल फरामोश। जमात इस्लामी के क़याम पर अमीर जमात इस्लामी हिंद का बयान। जमात इस्लामी क़याम के 75 साल तकमील पर सादतुल्लाह हुसैनी अमीर जमात इस्लामी हिंद सारे मुल्क हिंदुस्तान मौजूद जमात से वाबस्ता अरकान व कारकुनान से ऑनलाइन ज़ूम ऐप के जरिए सुबह 10 बजे खिताब किया। मुल्क भर में अमीर जमात की कलीदी खिताब को सुनने का एहतमाम किया गया। इस ज़िम्नी में नाज़िम जिला अर्बन ख्वाजा नसीर ने दफ्तर जमात इस्लामी अहमदी बाजार, याकूबपुरा, हबीब नगर, अहमदपुरा कॉलोनी में अरकान व कारकुनान को जमा करके अमीर जमात की खिताबे समाअत करने का इंतजाम किया। इसके अलावा उम्मीदवार अरकान का मरकज खवातीन पर ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। MN बेग, जाहिद अहमद, अब्दुल अजीम, जफर अहमद, आखिल अहमद, अब्दुल हलीम, ख्वाजा सिराजुद्दीन ने खिताब किया। जमात इस्लामी, दावत इस्लामी, मुआशरा, खिदमत खल्क, मुल्की मसाइल, तरबियत व तंजीम पर गुज़िश्ता 75 साल से सरगर्मियां अंजाम दे रही है। उम्मत में कुरान व हदीस का शऊर पैदा किया जा रहा ताकि उम्मत इस पर अमल करके दुनिया व आखिरत में कामयाब हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज जमात इस्लामी के मुकम्मल 75 साल हो चुके हैं। तो अमीर जमात का सुबह 10 बजे से 11 बजे खिताब था, जो जमात इस्लामी के तमाम अरकान कारकुनान ने अपने अपने मराकिज़ पर बैठकर अमीर जमात की तकरीर को समाअत फरमाया। तो अमीर जमात इस्लामी हिंद ने 75 साल में जमात इस्लामी हिंद ने क्या पेशरफ्त की उसके बारे में तफसीली रोशनी डाली और हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद जमात की क्या खिदमत रही। और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह 11 बजे से उम्मीदवार अरकान, शहर के उम्मीदवार अरकान का इज्तिमा मुनक़िद हो रहा है और उम्मीदवार अरकान को
हम एक मुकम्मल कोर्स से गुजारते हैं। इसमें इस्लामी लिटरेचर होता है, इससे इस्लामी शऊर हासिल होता है, फिर तंजीमी लिटरेचर होता है और उम्मीदवार अरकान को इस निसाब से गुजार कर बाद में उनको नज़्म जमात और इताअत अम्र की रोशनी में उनको रुकन बनाया जाता है जमात इस्लामी का। बेटी के घर के सामने माँ बाप ने किया एहतजाज, इंसाफ की मांग। बेटी और दामाद ने 15 तोला सोना और 10 लाख बूढ़े माँ बाप को झांसा देकर लिया था हड़प। बांसवाड़ा टाउन के बड़ा गली में माँ बाप ने बेटी के घर के सामने शामियाना डालते हुए एहतजाज किया। बांसवाड़ा के रहने वाले वीरियाचारी अजवाज जोड़े को 2 लड़के 1 लड़की, जबकि बड़ा लड़का अदालत के बाद फौत हो गया। छोटा लड़का निजामाबाद में खानगी मुलाजमत करते हुए अपने अहलो अयाल के साथ गुजर बसर कर रहा है। बेटी अनीता की शादी हुए 20 साल का अरसा गुजर चुका था। माँ बाप अरसे से बेटी के घर में रह रहे थे। बेटी ही इनकी देखभाल कर रही थी कि एक दिन बेटी दामाद ने माँ को एतमाद में लाते हुए इनके पास के 15 तोले सोना और 10 लाख नकद को लेकर माँ बाप को घर से बेघर कर दिया। माँ बाप परेशान होते हुए इंसाफ की खातिर बेटी के घर के सामने टेंट डालकर एहतजाज शुरू किया और बताया कि हमें इंसाफ ना मिलने पर बेटी के घर के सामने मर जाने की बात कही। मुखालिफ लोग बेटी दामाद की इस हरकत से अफसोस जता रहे हैं। ఇల్లు కొనేసాను 4 లక్షలు అన్నదమ్ములు పడి రాకొచ్చింది. అయితే ఇల్లు పోగొట్టింది పిల్లలు బంగారం తీసుకొని బిడ్డతో ఉండనని ఉంచినాం. ఇక నాకు పడి బొక్క ఇరిగిపోయిందని 4 వద్దులు ఉన్నాం. ఇక మా ఇంటికి మేము పోతాం ఇయ్యి బేట అంటే నేను ఇయ్య సాప అని ఎక్కడ కొట్టేసింది. అల్లుడు 2 మట్లు కొట్టిండు పెద్ద మనిషికి. నాకు మా అక్కడ కొట్టడానికి వచ్చిండు. మాది ఎంత అన్యాయం అయిపోయి బిడ్డ అని నమ్మినాం సారు. మాకు ఇట్లా చేసి మోసము. మేము ఏం చేయాలి, ఎట్లా బతకాలి, ఏం చేయాలి? ఎన్ని పైసలు ఇచ్చినావు? 10 లక్షలు 15 తులాల బంగారం మీకు ఇస్తా మొగనికి ఇస్తా అంటే నేను నమ్మిండు. కొడుకులకు నమ్మలేదు. ఇప్పుడు కాలం మంచిగా లేదు, కొడుకులకు నమ్మలేదు. బిడ్డ విశ్వాసం బిడ్డ దగ్గర ఉంచిన ఆపరేషన్ నాకు అయింది. నిజామాబాద్ ఆపరేషన్ చేసుకొని వచ్చిన తర్వాత न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के आवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बासानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को आवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJ मेमोरेबल
नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधर रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 आईसीयू बेड्स, 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, यूएसजी, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड टीएमटी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल जमजम फास्टर सेंटर व मदीना मेडिकल का इफ्तिताह एमआई इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली के हाथों। इस दवाखाने में डॉक्टर शाफिया परवीन व डॉक्टर वाहिद की खिदमत हासिल। हर इतवार को गरीब अवाम के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप रखा जाएगा जो कि काबिल सताइश काम है। अवाम इससे इस्तिफादा हासिल करे। मुनव्वर अली का बयान। शहर के 31वें डिवीजन में जमजम फास्टर सेंटर और मदीना मेडिकल का इफ्तिताह मुकामी एमआई इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली के हाथों अमल में आया। डॉक्टर शाफिया परवीन व डॉक्टर वाहिद शेख सद्दाम ने इंचार्ज कॉर्पोरेटर का वालाना इस्तकबाल किया। इंचार्ज कॉर्पोरेटर का वालाना इस्तकबाल किया, गुलहाए पेश की और शाल पोशी की। इस मौके पर दवाखाने के जिम्मेदारों ने बताया कि गरीब अवाम की खिदमत के मकसद से हर इतवार को मज़कूरा दवाखाने में गरीबों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप रखा जाएगा जिसमें मरीजों की तशखीस और अद्वियात भी मुफ्त दी जाएंगी। आज मुनक़िदा मुफ्त तिब्बी कैंप में बड़ी तादाद में मरीजों की तशखीस की गई और मुफ्त अद्वियात मुनव्वर अली के हाथों तकसीम किए गए। अवाम से इस्तिफादा हासिल करने की अपील की। जिले के 3 डिवीजनों के 11 मंजिलों पर शी टीम के तहत नजर व गिरफ्तारियां केस दर्ज। कोई भी खवातीन पर जुल्म, ज्यादती, परेशान करने की कोशिश पर डायल 100 पर राब्ता पैदा करें। जिले में शी टीम की कारकर्दगी काबिल सताइश। सीपी के आर नागराजू का बयान। जिले में शी टीम की कारकर्दगी काबिल सताइश है। सीपी के आर नागराजू का बयान। इन्होंने इस मौके पर खवातीन को बताया कि कोई किसी भी खवातीन लड़कियों को जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश करने पर हमसे राब्ता पैदा करें। इन पर सख्ती से निपटा जाएगा। जिले की शी टीम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही। निजामाबाद, बोधन, आरमूर डिवीजनों में आवारा लोगों पर निगाह रखी गई। अगर ऐसे कोई वाकयात रोनमा होने पर हमें 8712659795 फोन नंबर। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी अपने हार के खौफ से अवाम से क्या बात कर रहे इन्हें भी नहीं मालूम। वो अपना सियासी फायदा हासिल करने और सीएम केसीआर के खानदान की खुशनुदी हासिल करने के लिए बीजेपी कायदीन पर इल्जामात लगा रहे जो सरासर गलत है। आरमूर साबिका चेयरमैन के गंगाधर का बयान। नंदीपेट मंडल के कोत्तूर गांव में बीजेपी की क़ियादत में सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस मौके पर म्यूनिसिपल साबिका चेयरमैन के गंगाधर ने बात करते बताया कि हल्का एमएलए जीवन रेड्डी अपने सियासी फायदे के लिए अवाम में गलत बयानबाजी कर रहे, जिला एमपी अरविंद पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे।
आर्मूर हल्के की तरक्की की बात करने वाले जीवन रेड्डी को अवाम के सामने आना चाहिए। अंदर बैठकर सीएम केसीआर की खुशनुदी के लिए, सीएम केसीआर के खानदान की खुशनुदी के लिए जो मुंह में आया बोलने की कोशिश कर रहे, इल्जामात आयद कर रहे। सही बात तो यह है कि एमएलए जीवन रेड्डी को अपनी हार का खौफ बढ़ने लगा है, क्योंकि अब की बार आर्मूर की अवाम बीजेपी के हक में है। इस प्रोग्राम में बीजेपी मंडल सदर साई रेड्डी, बीजेपी ओबीसी रियासती नायब सदर एम गंगाधर, वाई भास्कर, सुरेंद्र, के प्रवीण, नरेंद्र व दीगर भी मौजूद थे। ఏం డెవలప్ చేసినావు ఏం చేయలేదు ఇలా ఆర్మూర్లో పట్టణ ప్రగతి అని చెప్పి పట్టణ ప్రగతిలో 50% సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వస్తున్నది మా స్కీమ్ మా ప్రభుత్వం ద్వారా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచే నిధులు వస్తున్నాయి మీ నిధులు ఏడిపోతున్నాయి ఇలా పట్టణ ప్రగతిలో లేవు అదేవిధంగా ఈ 5 సంవత్సరాల మున్సిపల్ మొన్న పెరికిడ్ మాటలు కలిసిన మున్సిపాలిటీ ఇలా 20 కోట్లు ఇస్తున్న కేసీఆర్ ఇప్పుడు ఇన్ని నేను 3 సంవత్సరాలు కావస్తున్నాను 3 సంవత్సరాల్లో 3 రూపాయలు కూడా ఇవ్వకపోతుంది మెడిచైనా విలేజ్ నాకు ఇస్తామని చెప్పి ఇలా ఏం డెవలప్ అవుతుంది ఆర్మూర్లో సెంట్రల్ ఫండ్ స్కీమ్ తప్ప ఏ ఒక్క రూపాయి పైసలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వస్తలేవు నువ్వు ఎక్కడ డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నావు ఇంకా నువ్వు దీన్ని ఏమంటారంటే నేను ఇప్పుడే చెప్పినట్టు దొంగనే దొంగ అన్నట్టున్నది మీరు డెవలప్మెంట్ చేయలేదు మీరే మాట్లాడుకోవాలి తప్ప ఏ డెవలప్మెంట్ కూడా చేయలే నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చినా సరే అదేవిధంగా నీకు జీవన్ రెడ్డి మళ్ళొకసారి ఛాలెంజ్గా చెప్తా ఉన్నా నీవు ఏదైనా ఇప్పటి నుంచన్నా ఆర్మూర్లో అనామకుడు ఆర్మూర్ పరిచయం నుండి ఆర్మూర్ ప్రజలు నిన్ను 2 సార్లు గెలిపించిండ్రు కానీ నువ్వు केवल मेरा शहर मेरे लोग मजीद आरिफ की किताब 11 दिसंबर को रस्में इजराई। मजीद आरिफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर mynizaamabad.com वेबसाइट की इत्तला के बमौजे मुतहदा जिला निजामाबाद की मारूफ शख्सियत के हयात व कारनामों पर मुश्तमिल सवानह खाके जो कि मज़कूरा वेबसाइट पर शाये हो चुके, उन्हें किताबी शक्ल में मेरा शहर मेरे लोग सीरीज के तहत पेश किया गया। तामिर पब्लिकेशंस हैदराबाद की जानिब से शाये करदा इस किताब की रस्म इजरा बदस्त मिस्टर रफत मोहम्मद खान सीनियर साबिक कॉर्पोरेटर वो कायद मजलिस के हाथों बतारीख 11 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 11 बजे उन्हीं की रिहाइश का वाक़ई खिला रोड निजामाबाद पर अमल में आएगी। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मिस्टर सैयद नजीब अली एडवोकेट साबिक रुकन उर्दू एकेडमी शिरकत करेंगे। इस किताब में जिला निजामाबाद की मुख्तदर शख्सियात मौलाना वलीउल्लाह कासमी, याकूब सरोश, मौलवी अब्दुल गफ्फार, तबस्सुम फरीदी, गुलाम नबी नुसरत, फजलुल्लाह कुरैशी, बहादुर अली राजानी, शौकत अली सोफी, जमील निजामाबादी, अहमद प्रेमी, मुखीद फारूकी, डॉक्टर असलम फारूकी, अख्तर मोइन, डॉक्टर अजीज सोहेल, जमील अहमद खान के खाके शामिल है। ये किताब अमेज़न के अलावा वॉलमार्ट के साथ साथ दुनिया भर में 40,000 से ज्यादा स्टोर्स पर दस्तयाब है। हिंदुस्तान में ये किताब रियायती कीमत सिर्फ 250 रुपये में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम 9390698834 के जरिए हासिल की जा सकती है। मज़कूरा मोबाइल फोन नंबर पर रकम अरसाल करने के बाद मुकम्मल पता उसी फोन नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि किताब बजरिए रजिस्टर्ड पोस्ट रवाना की जा सके। मजीद आरिफ ने तकरीब रस्म इजरा में पसौक अहबाब से शिरकत की गुजारिश की। पीडीएसयू की रियासती महासभा की कामयाबी पर कायदीन ने तलबा कायदीन का इजहार तशक्कुर। मरकजी हुकूमत की जानिब से अमल में लाई गई नए तालीमी पॉलिसी को मुस्तरद करने का पीडीएसयू का पुरजोर मुतालबा। इस महीने 7 दिसंबर को प्रगति भवन के पास एहतजाज, तालीमी हुकूक मनवाने की अपील। रियासती पीडीएसयू 22वीं महासभा की कामयाबी पर जिला पीडीएसयू कायदीन सदर आर गौतम कुमार, सेक्रेटरी जे राजेश्वर ने महासभा में हिस्सा लेने वाले कायदीन कारकुनान से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर पीडीएसयू कमेटी की क़ियादत में की गई सहाफती कॉन्फ्रेंस से कायदीन ने बात करते हुए बताया कि 22वें महासभा में रियासती तौर पर कायदीन तलबा की कसीर तादाद में हिस्सा लेते हुए कामयाब किया। महासभा के मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से खून का अतिया कैंप का भी इनेकाद किया गया। इस महासभा में मरकजी हुकूमत की तालीमी पॉलिसियों की सख्त मजम्मत की गई और इस तालीमी पॉलिसी को मुस्तरद करने के हक में करारदाद मंजूर की गई। इस महीने 7 तारीख को हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किए जाने के लिए तलबा को प्रगति भवन हाजिर होकर बड़े पैमाने पर एहतजाज में हिस्सा लेने की मांग की गई। हुकूमत से लड़ झगड़ कर अपने हुकूक मनवाने के लिए तैयार रहने की इस मौके पर अपील की गई।
నిర్వహించుకున్నాము. మొదటి రోజు విద్యార్థి ప్రదర్శన, అదేవిధంగా భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించడం జరిగింది. దీనికి జిల్లా నలుమూల నుంచి వేల మంది విద్యార్థులు తరలివచ్చారు. అదేవిధంగా రెండో రోజు మూడో రోజు ప్రతినిధుల సభలు కూడా నెల్లూరు కాపు కళ్యాణ మండపంలో జరుపుకోవడం జరిగింది. దీనికి అనేక మంది మేధావులు, అదేవిధంగా మీడియా మిత్రులు, అనేక మంది విద్యార్థులు పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ 3 రోజులకు సంబంధించి సహకరించినటువంటి విద్యార్థులకు, అదేవిధంగా మీడియా మిత్రులకు, అదేవిధంగా ఇక్కడ హాజరైనటువంటి మేధావులకు, జిల్లాలో ఆర్థికంగా అదేవిధంగా వస్తు రూపంలో సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నిజామాబాద్ జిల్లా కమిటీ తరఫున విప్లవ అభినందనలు తెలియ. इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। शहर की तरक्की के साथ साथ दौरे हाजिर में रेस्टोरेंट और मॉल्स के आगाज से अवाम को मिल रही सहूलतें। अर्बन एमएलए बिगाला व आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी। हर शहरी को वोट का हक हासिल। किसी भी अहल शहरी का नाम वोटर लिस्ट से हज़फ न हो, ओहदेदारान तवज्जो दे। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। पुलिस रिक्रूटमेंट के अहल नौजवानों के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट इंतजामात का पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू ने लिया जायजा, जारी किए हिदायतें। गरीब माँ बाप से सोना व रकम छीनने के बाद बेटी और दामाद ने बूढ़े माँ बाप को किया घर से बेदखल। इंसाफ के लिए बूढ़े माँ बाप का दामाद के घर के रूबरू एहतजाज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।